Hello. Hello, good morning. Am I audible? Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Yes. Morning, sir. Morning. Is it visible? Screen is visible? Yes, sir. So, जैसे हम लोग मेजरमेंट के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसका रेंज बहुत छोटा है। ज्यादा रेंज में काम करेंगे तो ज्यादा करंट आएगा मशीन में, मीटर में। अब मीटर में ज्यादा करंट आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, मेरा स्प्रिंग को डैमेज हो जाएगा, मेरा जो कॉइल है उसको ज्यादा थिक चाहिए ज्यादा करंट के लिए, लेकिन ज्यादा थिक कॉइल हम लोग यूज नहीं कर सकते। यूज करेंगे तो वो मूविंग कॉइल भारी हो जाएगा, ठीक है। सो इट कांट ऑपरेट। सो मेरा काम, हम लोग का काम अभी ये है कि स्टडी करना कि कैसे मुझे जो 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम मेजर कर सकता है एक मीटर, उसको कैसे यूज करके ज्यादा करंट हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। सिंपल वे, बट हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि एज ए एमीटर ये काम करेगा। एज ए फर्स्ट इज एज ए एमीटर, एज एन एमीटर, as an ammeter, we will try to extend the range of the meter. Let us connect my ammeter. Suppose this is my meter, this is my PMMC type meter instrument. The current, the maximum current it can measure, or the measurable current is IM. IM is the measurable current by the instrument. Okay? It is the measurable current by the instrument. By the PMMC. And it is maximum up to almost 100 milliampere. Almost. It may be less depending upon the meter, but suppose I am assuming that in my case it is maximum up to 100 milliampere. So it is in milli range. Fine. Next, the internal resistance of the meter, I am assuming it is Rm, R small m is the internal resistance. But my objective is to measure the current, that is I. I is almost just like I is the current that should be measured. That should be measured. And the range of this current is just like 10 ampere, 20 or 50 ampere, in this range. So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग we will connect a resistance. Will connect a resistance in this way in shunt with the meter. Okay, this is called the RSH, or the resistance connected in shunt with the meter. So RSH is nothing but the resistance connected in shunt. Shunt means parallel with the meter. With the meter. मीटर के साथ हम लोग शंट में एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एंड द करंट दैट विल फ्लो हियर इज ISH. सो इसमें मेरा फायदा क्या हुआ देख लेते हैं। सो द टोटल करंट दैट इज I which I should measure, it equals to ISH, the shunt current, plus IM, मीटर करंट। मुझे पॉइंटर में, मतलब मीटर में जो पॉइंटर है वो दिख रहा है IM, बट मुझे मेजर करना है I। कैसे? नाउ व्हाट इज IM? एज पर बेसिक नेटवर्क थ्योरी, व्हाट इज IM? IM is equals to, as per current divider rule,
the total current I into opposite resistance. Opposite resistance मतलब I am trying to find out IM in this branch. In this branch मुझे IM find करना है. So इसका opposite parallel जो parallel में है, so इसका opposite branch में resistance क्या है? RSH. So opposite resistance divided by total resistance, that is RM plus RSH. So I by IM, if I write, then it will be RM plus RSH divided by RSH, and we will write this as M. M is the multiplying factor. So M is nothing but RM plus RSH divided by RSH, and it is called the multiplying factor. Multiplying factor. This is M. So hence I equals to M. I by IM equals to M. So I equals to M into IM. अब मुझे फायदा क्या हुआ? जो मीटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो मतलब मीटर को बना रहे, एक साथ फैक्ट्री में बना रहे जो कंपनी, वो लोग, उन लोगों के पास ये M का वैल्यू है. They know the value of M because they know what is the value of RSH and what is the value of RM. So they will provide the data sheet of M. They will provide the data sheet of M. They will provide the data sheet of M. अब वो लोग मुझे M का वैल्यू दे दिए और मुझे मीटर में जो पॉइंटर है, दिस इज माय PMMC टाइप मीटर, ये मीटर क्या कर रहे हैं? सपोज ये मीटर मुझे वैल्यू दे दिया कि सपोज 50 मिली एम्पियर, ये मुझे वैल्यू दे दिया. ठीक है, 50 मिली एम्पियर ये मुझे वैल्यू दे दिया और 0.05 एम्पियर मुझे इसका वैल्यू दे दिया. दैट इज द IM. आई नो. सो मुझे पॉइंटर में एमीटर में मिल रहा है 0.05 एम्पियर. फाइन. एंड आई नो M equals to suppose 10. I know M equals to suppose 10. Then I can find what is the actual value of the current. It is nothing but 10 into the measured value. मतलब जो मुझे मिल रहा है 10 into 0.05. So like this way, M may be higher or lower. This IM may be higher or lower. But मुझे ऐसे करके मुझे एक्चुअल जो करंट का वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है. मतलब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल मीटर का रेंज एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल मीटर में कुछ नहीं कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ मीटर के साथ पैरेलली एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग जो मीटर देखेंगे उसके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि ये फैक्ट्री से आता है. ठीक है, एक रेजिस्टर, ये जो लो रेजिस्टेंस RSH जो शंट रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी फैक्ट्री से बना हुआ आता है, कनेक्ट हुआ आता है. ठीक है, Therefore, उनके पास M का वैल्यू है जो हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है. हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हम लोग सिर्फ देखते हैं कि पॉइंटर में कितना वैल्यू आ रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअल करंट मुझे मिल रहा है. सो दैट इज द नाइस वे टू एक्सटेंड टू मेजर द एक्चुअल वैल्यू. ओके, सो मुझे M पता है, मुझे IM पॉइंटर से मिल रहा है, सो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द I actual value, actual current. Okay, so that is the value. Now here the question may come that ये जो RSH है, ये जो RSH है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये किससे बना हुआ है? First of all, obviously the main property is that low temperature coefficient. Low temperature coefficient. Low temperature coefficient. लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब टेम्परेचर वेरिएशन के साथ इसका रेजिस्टेंस उतना वेरी नहीं करेगा, बहुत कम. जितना टेम्परेचर वेरी कर रहा है उस हिसाब से इसका वेरी नहीं करेगा टेम्परेचर. फाइन. जैसे मेनली जो टेम्परेचर वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है RT = R01 plus alpha T. T is the difference of the temperature, alpha is the temperature coefficient. This alpha is called the temperature coefficient. I think you all know this thing. रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का जितना वैल्यू होता है, जितना वेरिएशन होता है, लाइक दिस फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द मटेरियल?
in case of DC, the material is called the manganese, and in case of AC, the material is constantan. Okay, you will find this thing in your book also. What is the material? What is the material for DC? What is the material for AC? So, मेरा इसका सर्किट कैसा हुआ ना? दिस इज द कॉइल, दिस इज द पीएमएमसी मीटर एंड उसके साथ पैरेलली एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड। फाइन, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आरएसएच और ये आरएम। दिस इज द टोटल करंट आई एंड इधर मेरा करंट डिवाइड हो रहा है। दिस इज द आईएम एंड दिस इज द आईएसएच। बट देयर मे बी अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगा ना? ये जो कॉइल है ये जो पीएमएमसी का कॉइल है, जो मूविंग कॉइल है पीएमएमसी का, ओके, ये कॉइल इट मे बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। जो मेरा मीटर का कॉइल है एल्यूमिनियम और कॉपर का है, ठीक है, बट जो आरएसएच है ये है मैंगानीज और कांस्टेंटाइन का, ठीक है, मैंगानीज और कांस्टेंटाइन। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉब्लम यही है कि दोनों का टेम्परेचर वेरिएशन इफेक्ट इज डिफरेंट। एल्यूमिनियम और कॉपर का उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो टेम्परेचर वेरिएशन इफेक्ट है रेजिस्टेंस के साथ, वो डिफरेंट है। मैंगानीज एंड कांस्टेंटाइन का उसका भी डिफरेंट है, ठीक है। नाउ मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर that depends upon, that is what, that is RSH by RM by RSH. Okay, it is a constant, it must be fixed, क्योंकि मुझे ये डेटा प्रोवाइड किया गया कि in this temperature M must be this value, suppose 0.2 or 2 or 5 or 10, this value, so it is a constant value. But temperature variation से RSH and RM का रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंट वे में चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज आरएम डबल हो गया एंड आरएसएच कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बहुत कम स्लाइडली चेंज हुआ, तो मेरा एम का वैल्यू तो कांस्टेंट में ही रहेगा, एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट। आरएम सोचो ज्यादा बढ़ गया, आरएसएच कुछ भी नहीं बढ़ा, नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट हुआ, बिकॉज उसका लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सो एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एंड एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो मीटर में हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उसमें एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि एम का वैल्यू कांस्टेंट, आई नो एम का वैल्यू कांस्टेंट, बट टेम्परेचर वेरिएशन के चलते दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस एंड मेरा जो शंट रेजिस्टेंस, दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट होने के नाते मेरा एम का वैल्यू चेंज हो गया, बट व्हिच आई डोंट नो। देन व्हाट कैन वी डू? हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं? और देयर इज अ फाइन सोल्यूशन, हम लोग ऑलरेडी उसको, ये सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट मी शो यू, द सोल्यूशन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस? दैट इज कॉल्ड द स्वाम्पिंग रेजिस्टेंस, और स्वाम्पिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी हम लोग उसका ही हेल्प लेंगे। Here also to solve this problem, temperature variation problem, हम लोग क्या करेंगे? We will connect, not we, it is actually the factory made. So factory जो काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है इस मीटर का, वो लोग ही ये कनेक्ट कर देगा। क्या ना? Connect a series resistance with the coil मतलब जो जिसका रेजिस्टेंस है मेरा Rm, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसका नेचर क्या है ना? स्वाम्पिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वाम्पिंग रेजिस्टर का मतलब इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज ऑल्सो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
तो इसमें मेरा कोएफिशिएंट, तो इसमें मेरा फायदा क्या हुआ ना, RSH इसका भी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड RM के साथ मैंने एक सीरीज रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया दैट इज कॉल्ड द स्वैम्पिंग रेजिस्टर, उसका भी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो दोनों का नेट टेम्परेचर वेरिएशन ऐसा होगा कि मेरा एम उतना वेरी नहीं करेगा, एम विल नॉट वेरी विद द टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हुआ, मेरा 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 प्रॉब्लम था फर्स्ट कि दोनों का मटेरियल अलग है, आरएम का मटेरियल मतलब ऑयल का मटेरियल अलग है और मेरा RSH का मटेरियल अलग है। सो टेम्परेचर वेरिएशन में मेरा एम वेरी कर सकता है। बट अभी हम लोग क्या किए ना, RSH तो है RSH के जैसा, मैंने क्या किया ना, ऑयल का जो मटेरियल है उसके साथ मैंने स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो मेरा नेट टेम्परेचर वेरिएशन ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि RSH एंड RM का नेट टेम्परेचर वेरिएशन कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल। thereby एम का वेरिएशन विद टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, एम with temperature it is negligible variation. So we have m constant, we will found that m is still constant. Okay, so हम लोग इसका एक्चुअल जो फिगर उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि RSH, this is the RSH, this is the actual figure RSH, this is the RM and ये हो गया मेरा स्वैम्पिंग R swamping, okay, and this is the meter coil, this is the I, ये मेरा हो गया IM, ये मेरा हो गया ISH, and this is the actual meter that we found. This is the actual meter that we found in our laboratory or in England. और ये तो हो गया, ठीक है। नाउ RSW हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टर हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, उसके चलते क्या मेरा जो कैलकुलेशन है, हम लोग ये कैलकुलेशन ऑलरेडी किए हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। IM पे MIM क्या ऑब्वियसली चेंज होगा, बट हम लोग उसमें नहीं जा रहे क्योंकि वो हम लोगों का सिलेबस में अभी उतना कुछ नहीं चाहिए। हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टर कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, क्या चेंज हो सकता है, उसका प्रॉब्लम गेट के सिलेबस में, बट यहाँ पर मुझे उतना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सिंपल वे में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग सिंपल वे में ये फॉर्मूला का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना कि स्वैम्पिंग रेजिस्टर ऐड करने के चलते मेरा ये फॉर्मूला में कुछ चेंज होगा। ओके, जो मे बी दूसरे एक दिन हम लोग ये कर लेंगे क्योंकि हम लोग को एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइन, नाउ हम लोग अभी एक सॉल्व कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल में क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया, लेट मी सॉल्व इट। A 0 to 1 milliampere PMMC type ammeter having internal resistance is 5 ohm. Calculate the value of shunt resistance to extend the range up to 100 ampere. So let us first discuss the lines of this problem. क्या है ना, मेरे पास एक PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट है which is ammeter. फाइन, इसका रेंज मुझे दिया गया 0 to 1 मिली एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर दैट इज IM means meter current, maximum current it can measure is 1 milliampere. Fine, इसका रेंज है 0 to 1 milliampere. So maximum current it can measure or full scale current it can measure 1 milliampere. Fine. Having internal resistance. So internal resistance of the meter is RM. It is 5 ohm. Okay. We have to connect a shunt resistance. So we have to find out what is the value of shunt resistance.
we don't know. To extend the range up to 100 एम्पियर, मतलब ये है कि जो मेरा I था पहले, I मतलब जो एक्चुअल करंट दैट शुड बी मेजर्ड, ओके, एक्चुअल करंट दैट शुड बी मेजर्ड, वी कैन, दिस इज द मीटर, दिस इज द, हम लोग पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, इट इज IM, इट इज ISH, RSH, RM, एंड इधर मेरा है I. जो एक्चुअल करंट दैट शुड बी मेजर्ड अप टू 100 एम्पियर, ओके, सो दिस इज 100 एम्पियर, फाइन. सो सिंपल वे में हम लोग इसको कैसे करेंगे, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला, we know that I equals to M into IM, fine. I is equals to 100, we have to find the M, and what is the value of IM? IM is 1 milliampere, 1 milli, okay, so 100 equals to M into 1 milliampere. Fine, this is a 1 milliampere. So what will be M? M is nothing but 100 by 1 milliampere, 100 ampere by 1 milliampere. It is, you will check the value, it may be 100k, okay, it may be 100k, okay, 100 into 10 to the power 3, 100k का मतलब 100 to the power 3, because it is 100 by 1 into 10 to the power minus 3, so this is 100k, or we can write it as 100 into 10 to the power 3, okay? This is the value of M, fine. मुझे M मिल गया, अब मुझे RSH चाहिए. I know RSH plus RM divided by RSH equals to M. So 1 plus RM by RSH equals to M. So we will actually, हम लोग क्या किए ना, RSH by RSH plus RM by RSH किए. So RSH by RSH equals to 1. So RM by RSH equals to मेरा हुआ M minus 1. So what is RSH? RSH is nothing but RM by M minus 1. And we know M equals to 100 into 10 to the power 3. And we know RM equals to 5. So यहाँ से मुझे RSH मिल जाएगा easily. So ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आएगा बुक में भी, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो मैं पॉइंट आउट करके अपलोड कर दूंगा within today evening. So ये हो गया एमीटर का, एमीटर में जो हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं रेंज, फाइन. नाउ एक मीटर को तो हम लोग वोल्ट मीटर तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो इसको कैसे होगा नेक्स्ट. सो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ द रेंज इन एमीटर, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज इन एमीटर.